So after discussing the concepts related to the expenses and incomes, we had come on to the part of assets, जिसमें हमने डिस्कस किया था that the assets are primarily categorized into the fixed assets, current assets and investments. What do I mean by asset? Anything that is owned by the business, any receivables by the business, those are primarily categorized into the assets. अब इन assets को हम लोग क्यों बाइफरकेट कर रहे हैं into the fixed, current and investments is because of the going concern concept. क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन को अलग रखो और जो आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन को अलग रखो. तो जब हम लोग कोई एसेट परचेज कर रहे हैं विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वी आर नॉट परचेसिंग इट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू रीसेल इट इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन इन दैट केस इट बिकम्स आवर फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट परचेज करने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या कि हम लोग उसे इन द प्रोसेस ऑफ सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन यूज करने वाले हैं. इन प्रोडक्शन नहीं, फॉर प्रोडक्शन. दोनों में फर्क है. मशीनरी इज यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स, रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. आप कोई अगर रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो यू आर परचेसिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स. Like take the example, ये table, the company from where we have bought this, they must have bought this wood or plywood or whatsoever it is, the basic ingredient of that, with an intent to produce this table only or not. So for them, the amount that they have spent in purchasing that wood or plywood, that will be considered as goods or current asset. That will not be considered as the fixed asset. Why? They are purchasing it for producing the finished goods. Whereas the machine that they must have purchased, which would cut this particular wood into the given shape, size and requirements, that machine will be considered as fixed asset because it is used in the process of production, for the purpose of production. तो फिक्स्ड एसेट्स आर बेसिकली फॉर यूजिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेस. इन्वेस्टमेंट्स, समथिंग दैट यू आर परचेसिंग फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस बट यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट इन द बिजनेस. यू आर नॉट परचेसिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ यूज विद इन योर बिजनेस और फॉर प्रोडक्शन और सर्विसेस. यू आर परचेसिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट. आपने अल्टीमेटली उसे बेचना ही है, उस इंटेंट के साथ आप खरीद रहे हो, देन इन दैट केस इट बिकम्स योर इन्वेस्टमेंट्स. लाइक शेयर्स, किसी कंपनी के हमने शेयर्स खरीद लिए, आईटीसी एक लगभग छोटी सी कंपनी हमारे देश की, पता है आपको आईटीसी क्या करती है? कंपनी सिगरेट बनाती है और अच्छा क्लासमेट के बुक्स भी वही बनाती है और एफएमसीजी में है. एफएमसीजी में क्या बनाते हैं एफएमसीजी में? अच्छा हाँ, आशीर्वाद का आटा, हाँ, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय आईटीसी. बेसिकली द इंडियन टोबैको कंपनी ITC, this company has become a kind of multi-diversified company now. Earlier it was typically a tobacco company. हमारे देश की वर्चुअल मोनोपोलिस्टिक कंपनी इन द इंडस्ट्री ऑफ सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल. कल कहीं तो पढ़ रहा था मैं, out of the 10 brands of cigarettes which are sold and manufactured and sold in India, 8 are manufactured and sold by ITC. 8 out of 10.
83% revenue for ITC comes from the cigarette manufacturing and sale, और बाकी 17% में FMCG, hotels, books and stationery, or even the allied factors. They have their own hotel chain. ITC का, I think it is Leela Hotels that is owned by ITC. I don't remember their brand exactly. ITC Grand Sheraton, हाँ, Sheraton chain of hotels that is owned by ITC. Then, even for that matter, Sunfeast जो brand आता है, that is of ITC. Ashirwad is the brand of ITC. Fiamma Devils, वो जो शैम्पूज वगैरह आते हैं ना, that is of ITC. So any which ways, this company ITC, when it is purchasing something for the purpose of using in the process of production, not for the purpose of resale, that becomes their fixed asset. और हमने अगर ITC के शेयर खरीद लिए, we are purchasing it for what purpose? For the purpose of resale. आज ITC का शेयर कुछ 360-370 पे चल रहा है, and I am expecting that it will go to 700 rupees after 3 years, 4 years. So if I purchase it today and I am intending to sell it after 3 to 4 years, I am not purchasing it for keeping it with myself forever. And on top of that, I am expecting to get the returns in the form of dividend from ITC or not. And that's why the ITC's share will become an investment for me. Why? Because I am purchasing it for the purpose of resale. And that's why it will be considered as an investment into my business. Similarly, the third category into that is current assets. That is something that I am purchasing not for the purpose of holding it for a longer period of time. I am going to hold it for a short period of time, generally less than 1 year. और क्योंकि मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खरीद रहा हूं, मेरा इंटेंट है कि मुझे या तो वो बेच के पैसा मिल जाए, जिसे मैंने बेचा है उससे पैसा मिल जाए within a period of 1 year. That's why we consider those as what? The current assets. So basically something that is purchased for a long-term purpose, used within the business, not for immediate resale, that is called as fixed asset. Something that is purchased for long-term purpose but with the intention of resale and getting the appreciation on that, or to get the regular returns on that, will be considered as investments. And something that is held for a short period of time, generally less than 1 year, with an intent to convert that into cash immediately, that is what we call as the current assets. I hope the points are quite clear for everyone now. So what we have discussed till now is the concept of cash and credit transactions. We have discussed that every transaction have two effects. जब से शुरुआत की थी तब से बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? हाँ, अदरवाइज सर ये तो मतलब कुछ अलग ही चला गया, चैनल चेंज हो गया। सर वो सेम सीरीज चलाते तो हमको समझ आता, वही सीरीज चल रही है, याद है ना? हाँ, नहीं तो पता चला कि 7वें एपिसोड पे, पहले एपिसोड पे क्या हुआ था पता ही नहीं चला। नहीं, हाइस शुरू कहाँ से हुई थी वो पता ही नहीं चला, हाइस कैसी चल रही है उस पर फोकस है पूरा। अपने को भी कभी करने का मौका मिल जाए। देखा है मनी हाइस्ट? कितने लोग? मनी हाइस्ट बढ़िया सीरीज है। जिस लेवल पे चोरी करते हैं ना, सिमिलर काइंड ऑफ अगर देखने हैं ना, सिमिलर काइंड ऑफ सीरीज मूवीज है एक्चुअली। ओशन 8, ओशन 11, ओशन 12, ओशन 13 मूवीज की सीरीज है। क्या लेवल पे चोरियां की है ना इन्होंने। तो हम लोग धूम 3, धूम 4 में इंटरेस्ट, मतलब
फैसिनेट हो जाते हैं, यार क्या चोरी कर रहा है आमिर खान, वो देखो पता चलेगा। हम लोग धूम धूम में करे, धूम धूम धूम, कुछ नहीं, वहां रियल है जो भी है। एनीवेज, तो when we started, we were talking about the type of transactions: cash transaction, credit transaction. We talked about that in every transaction, because we are following the double entry system, there will be two effects. Cash transaction में क्या क्या आएगा? कैश एक जगह पे, कैश और बैंक, और दूसरा आएगा एक्टिविटी, पर्सन और पर्पस, बराबर। दूसरा हमने डिस्कस किया था क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन? जहां इमीडिएट फ्लो ऑफ मनी ना हो, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक साइड हमेशा हमें पर्सन मिलेगा, व्यक्ति, बंदा, किसके साथ डील कर रहे हैं हम लोग, एंड ऑन द अदर साइड विल ऑलवेज हैव पर्पस और एक्टिविटी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करना चालू किए थे द आइटम्स, गुड्स, असेट और कंज्यूमेबल। गुड्स, समथिंग दैट वी डील इनटू, assets which are purchased for long term purpose, and consumables which are for consumption within a short period of time, generally less than 1 year. Then we went on to the concept of expense, capital, revenue. Revenue में operating, non operating, operating में direct, indirect. I hope you remember these all. सिर्फ नाम नहीं, हाँ उसके अंदर का मसाला भी याद है। हाँ, एग्जाम में मसाला लिखना पड़ेगा, ब्लफ नहीं। क्या फर्क पड़ता है, 2-4 गाने लिख के आएंगे अपन। आजकल तो बीकॉम में भी नहीं चलते। हाँ, फैकल्टी ने अगर गलती से पढ़ लिया तो फिर उसका भी रिप्लाई करेगा वो उसमें गाने के रूप में, राइट? सो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। बीकॉम तक के ठीक है, बीकॉम में लिखो वो अपनी कहानी, पर सीए कोर्स में ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा तुम्हारा बीकॉम तो स्टार्ट होने वाला है ना अभी? अभी 12th खत्म किए हो ना? वहां में तो यही किए थे तुम, नहीं? ओसीएम सर, ओसीएम में सिर्फ हेडिंग याद रखना जरूरी होता है सर, बस। अंदर हमने क्या लिखा है ये हमको नहीं पता, दूसरा क्या समझेगा, राइट? ओसीएम एसपी कितने लोगों का था? बाप रे, मतलब आपका मैथ्स नहीं था, मैथ्स भी था, ये कमाल है यार। अच्छा, ऐसे कितने जिनका एसपी और मैथ्स दोनों था? एसपी और मैथ्स दोनों था, भगवान भला करे तुम्हारा बेटा। दो वो कहते हैं ना, पीड़ाएं एक साथ सहना। खैर मैथ्स तो मजा होता है, मैथ्स इज फन, बट एसपी यू नो, एक्ट ऑफ 1956 से 2013 हो गया एसपी में, 2013 हो गया, थैंक गॉड। मैंने मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार पढ़ाया, उस समय पे 56 चल रहा था और हम लोग 2018 में थे, मतलब 2013 का एक्ट ऑलरेडी आ चुका था और अब तब हम लोग कौन सा पढ़ा रहे थे? तो 1956 वाला एक्ट। मैं क्या यार, मैंने पढ़ाना ही बंद कर दिया अगले साल से, मैंने नहीं पढ़ाना है, बकवास सब्जेक्ट। और दिक्कत क्या होती है ओसीएम में, ऐसा है कि आपको हेडिंग याद है, आप अंदर का कुछ भी लिख लो, बट एसपी में ना दैट स्कोप इज नॉट देयर। एसपी में आपको वो कंसेप्ट पॉइंट्स पूरे लिखने पड़ते हैं कि अभी शेतकरी क्या करेगा, ओ सॉरी सेक्रेटरी क्या करेगा। सो शेतकरी होता है बेचारा, कितनी मेहनत करता है और पैसा कुछ भी नहीं मिलता है उसको, इसलिए सीए बनना ज्यादा सही है, समझ रहे हो ना? हाँ, सेक्रेटरी, अकाउंटेंट दोनों हैं तो चार्टर्ड। वेल एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स फर्दर। देन वी केम ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ इनकम। इवन फॉर द इनकम वी मेड द बाइफर्केशन एज the direct income, indirect income, operating income, non-operating income.
And then we were discussing about the assets, wherein we discussed about the fixed assets, investments and current assets. Now let me come ahead to the last part of this discussion, and immediately after that we have to start with the concept of the types of accounts, and that is the concept of liabilities. Any and every obligation of a business is what we call as a liability. I repeat my point, what I am saying. Any and every liability, obligation of a business is what we call as the liability. वो एक्चुअली हुआ यूं था कि कुछ साल पहले एक सिचुएशन बनी थी, तो मुझे मेस में खाना खाना पड़ रहा था. उसके बाद कभी मैंने ऐसा मौका नहीं आने दिया. होता है यार कभी कभी, मतलब जब तुमको घर से फरमान मिल जाता है ठीक है अब खाना भी बाहर ही खाओ. हाँ, फिर मैं समझ गया कि इसके बाद ऐसी खुराफात अपने को जिंदगी में वापस नहीं करनी है. आई रियलाइज्ड. तो मेस में खाना खाने गया था, तो अब कहीं पे भी ये एरिया में चले जाओ या फिर इवन इंदुलाल कॉम्प्लेक्स के नियर बाय एरिया में चले जाओ तो अपने ही बंदे होते हैं लगभग. मेस में बैठा था, खाना खा रहा था मैं, उतने में एक स्टूडेंट आया, कहता है सर आप यहाँ पे. मैं क्या हाँ यार मजबूरी में आया हूँ. कहता है वो ठीक है सर, बाकी सब ठीक चल रहा है. पुराना स्टूडेंट था. मैंने हाँ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस में बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा सर एक बात बताओ, लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? मतलब दिमाग खराब हो गया तेरा, तो सीए फाइनल में तो मेरे से ऐसे बकवास सवाल पूछ रहा है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? नहीं सर बताओ तो, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? ऑफ कोर्स एनी ऑब्लिगेशन पेएबल बाय अ बिजनेस, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लाइबिलिटी. है गलत बताया था. अभी इतने साल से यही तो पढ़ा रहा था, तेरे को भी यही पढ़ाया था. कहते गलत है सर, हमने बाद में सीख लिया सही क्या है. मतलब क्या होता है? व्हेन अ कैट ब्रिंग्स अ टी इट इज लाइबिलिटी. लाइबिलिटी, नो. सो मेरा नहीं था. हाँ, मैंने सिर्फ कहानी बताई. हाँ, तो सोचो लोग कहां कहां किस किस लेवल तक के सोचते हैं. एनीवेज, सारे लोग इतना सिंसियरिटी के साथ सुन रहे थे ना, मास्टर कोई सही वाली कहानी बता रहा है. तो एनी एंड एवरी ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस, when you are obliged to pay because you have already received the benefits or you are taking something for repayment, that is why it becomes your obligation. So when there is an obligation to a business and against that you are supposed to pay anything, that is what you call as your liability. Now liabilities can be, if you take the example of liabilities, these liabilities can be categorized into the liabilities towards the owners and liabilities towards the outsiders. Sir, liability towards the owners? बालकनी क्या हुआ? तू तब से शक्तिमान क्यों बना बैठा है? थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे हाथ घुमा रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे हाथ घुमा रहा है. तेरे को लग रहा है कि तू ऐसा जोर से हाथ घुमाएगा तू सच्ची में शक्तिमान हो जाएगा? होता है ना ऐसे हाथ करता है वो मुकेश खन्ना, तो ऐसे उड़ना चालू कर देता है कि इधर से ड्रिल करके ऊपर डायरेक्ट 3rd फ्लोर पे जाऊंगा मैं. ए बालकनी, गर्मी लग रही तेरे को? सर आई एम सो हॉट यू नो. सो सर आप जिस एरिया में मेरे को बिठा के रखे उधर एनवायरनमेंट हॉट हो गया, हम क्या करें? वी आर ट्राइंग टू कूल ऑफ बट द थिंग्स आर नॉट गेटिंग कूल्ड. आएगा बेटा आएगा, एसी की हवा आ रही तेरी तरफ, रुक जा, संयम धर जरा. और इधर जो बैठे ना बटन के नीचे, भाई दरबान बन के रह जाएगा तू. सुनने का ही नहीं, ध्यान ही नहीं देने का, इग्नोर कंप्लीट. ठीक है ना? हाँ, वो बेचारा वो 4 लोग बोलते हैं बटन चालू कर, 4 लोग बोलते हैं बटन बंद कर, इसके लिए बिठाया तेरे को उधर, उसके अलग पैसे लेगा तू.
So the liabilities can be this is so good, man. A person comes to the class, gets the full attention and leaves the class just like that. Attitude, man. इधर का कोई पंखा चालू नहीं है ही नहीं. So liabilities can basically be divided into the owner's liabilities and to the outsiders. What is an owner's liability? That is the amount that is payable to the owners of the business. Sir, owner को pay, owner का पैसा, business का पैसा, one and the same thing. There is a concept called as business entity concept. As per the business entity concept, the owner of the business and his business are categorized, are divided separately. These two are considered individually. So if there is this fellow, let's say Mr. Jhumru, please meet him. He is Mr. Jhumru. He is going to meet you again and again. If he is having a business, Jhumru's Biz, Jhumru is carrying out his business for accounting purpose. Practically Jhumru और उसका business one and the same thing. But for accounting purpose, Jhumru and his business will be treated separately. Jhumru is considered as a separate entity and business is considered as a separate entity for accounting purpose as per the business entity concept. इसीलिए जब कभी भी झुमरू बिजनेस में पैसा लाता है, cash brought in, it is considered as a liability for the business. और अगर झुमरू बिजनेस में से पैसा ले जाता है, cash taken out, in that case it is considered as the drawings of business. It is not considered as business का खर्चा. All right. So whenever you are talking about a business and its accounting, the owner and his business have to be treated separately. इसीलिए अगर बिजनेस में मैंने कुछ पैसा लगाया तो मेरे बिजनेस के लिए वो मेरी तरफ क्रिएट होने वाली लाइबिलिटी मानी जाएगी. Alright? So that's why even the capital of the business is considered as the liability. सर फिर कैपिटल क्यों बोलते हैं उसको? अगर लाइबिलिटी है तो उसको लाइबिलिटी करके ट्रीट करो ना, फिर कैपिटल कैपिटल क्यों बोलते रहते? Because such amount is going to remain in the business typically till the time business continues or not, and that's why it is considered as the capital of the business. So towards the owners, the first liability that a business has is capital. Why we are considering this as liability is as per business entity concept. यहाँ तक ठीक है? Even the reserves and surplus of the business, reserves and surplus of the business are also the liability of the business towards its owners. क्या होते हैं reserve surplus? Anyone? What do you mean by reserves? Yes? Retained earnings. Okay. Yes, anyone else? What do you mean by reserves? हाँ जी. Accumulated profits. सिर्फ पार्टनरशिप को फोकस में रख के आंसर आ रहे. सर वही था रिजर्व्स और कहीं था ही नहीं. हाँ जी.
Reserve fund. Okay. What do you mean by reserves is what I'm asking. Yes? Money kept aside for the future purpose. Okay. RDD, reserve for doubtful debt. Is it the same thing? No? Hanji? A part of profit that is not given to the shareholders. Okay. हाँ. अच्छा, part of profit kept aside in the good days of the business. Okay. Yes. Anyone else? What do you mean by reserves? अच्छा, सरप्लस क्या होता है? सुना तो है ना आपने? रिजर्व सरप्लस दोनों सुना है ना? हाँ, सरप्लस एक्सेस ऑफ प्रॉफिट. फिर तो एनपीओ पे फोकस रख रही है. Obviously, excess of profit, excess of incomes over expenditure is surplus. I'm not talking about that surplus. उसके अलावा वाला कोई surplus अगर किसी को पता हो तो. Yes. We have the support of YouTube lectures along with Sir plus YouTube. नहीं? बहुत बकवास था. हाँ. यस. पीछे बालकनी में कोई आंसर दे रहा था, इधर लेफ्ट बालकनी. नहीं नहीं, गिर गया, सब शब्द गिर गए. गो अहेड, गो अहेड. नहीं नहीं, वो तो बोल दिया ना बेटा, वो नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज एनपीओ वाला सरप्लस. आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस वाला सरप्लस विच इज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. हाँ जी. That is called as owner's funds, net worth. Excess of assets over liabilities is called as net worth, not reserves and surplus. नहीं जमा, फ्रिज लाना पड़ता तो जमेगा ना. हाँ, बोलो बोलो, क्या होते हैं सरप्लस? रिजर्व्स बहुत सारे लोगों को पता था, ये सही है. When you are keeping certain profits of the business aside specifically with the intent for a future use, that future use can be a known use or it can be an unknown use. You create some specific reserves, you create some general reserves. That is what we call as the reserves. Profit kept aside for use in the future of the business. That is considered as reserves. And the amount of profit remaining within the business after making all the allocations in the form of reserves, dividends, distribution of profits, etc., that is what we call as the surplus. Reserves and surplus are basically the undistributed profits of the business. अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता, ये जो रिजर्व सरप्लस आपके पास बच रहे हैं, प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स, जिसे आप फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हो, ये अगर आपके बिजनेस में बच जाता, ये अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता बचाने के बजाय, तो अल्टीमेटली ये कैपिटल का ही हिस्सा बन जाता है नहीं? यस और नो? विच मीन्स व्हाट? The undistributed profits of the business primarily belong to the owners of business only, or not? And as the undistributed profits belong to the owners, that's why it is called as the liability towards the owners of the business. लॉजिक समझ में आया? क्योंकि लिखा कई बार है आपने, रिजर्व सरप्लस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड रिजर्व्स,
क्यों लाइबिलिटी? सर ये तो प्रॉफिट्स होते हैं ना, प्रॉफिट्स कैसे लाइबिलिटी होगी? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो ओनर को मिल जाता, तुमने वो ओनर को प्रॉफिट नहीं दिया, इसीलिए इट इज कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। एम आई गोइंग राइट? पक्का? बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता है, बट उसका तात्पर्य क्या है, मीनिंग। सर आपने ये वाले शब्द यूज मत किया करो प्लीज, एक तो हमको प्रोनाउंस करने नहीं आते, तात्पर्य क्या है? नॉर्मल हिंदी में बात करो आप, या फिर इंग्लिश में बात करो, वो ठीक है। अच्छा, कितने लोग इंग्लिश से कंफर्टेबल नहीं है, उतना कंफर्ट नहीं आता है, मतलब अगर कंसिस्टेंटली इंग्लिश चला तो फिर दिक्कत हो जाती है। कितने लोग? ऑल आर गुड विथ इंग्लिश? आर यू ऑल श्योर? सोच लो बेटा, अगर मैं इंग्लिश में स्टार्ट हो गया ना, यस, 1 2 3 4 5, रेजिंग ऑफ हैंड्स इज अ कंटीजियस डिसीज, यू नो। हाँ, पूरी क्लास में से 15-20 ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश कंटिन्यूस, अगर इंग्लिश चलता रहा तो दिक्कत होगी, बाकी अदरवाइज सब कंफर्टेबल है। बेटा ये 20 को साइड में रख के जब लेक्चर लूंगा ना, तब समझ में आएगा तुमको। बंदा इमीडिएटली वो सिचुएशन में आ जाता है, कोई बचाओ यार हमको यहां से, इंग्लिश में सिर्फ सीरीजें अच्छी लगती है, मास्टर के लेक्चर अच्छे नहीं लगते हैं। सर वो सीरीज में तो हाइस्ट होता है ना, तुम क्या समझे थे? इतने करप्ट माइंड कैसे हो बे तुम? सीरियसली, तुम जिस एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, मेरी वो एक्सप्रेशन थी ही नहीं, पागल। So capital is a liability because of business entity concept. An amount which is brought by the owner into the business is a liability for the business. Reserves and surplus is also the liability towards the owners, क्योंकि these are the undistributed profit, अगर डिस्ट्रीब्यूट होते तो ओनर को ही मिलते, हमने वो प्रॉफिट ओनर्स को नहीं दिए, इसीलिए वो हमारे लिए लाइबिलिटी रहेगी जब तक कि वो फंड्स हमारे पास है तब तक। हां, कल को अगर नुकसान हो जाए, इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए, तो वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, राइट? देन द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स कैन बी अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और इट कैन ऑल्सो बी अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? समथिंग दैट इज बीन बोरोड फॉर अ पीरियड मोर देन 1 year. In that case it becomes a long term liability. कि आप ये पैसा बोरो कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू रीपे इट इन अ इमीडिएट पीरियड, यू आर गोइंग टू रीपे इट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट वन। अगर आपने कोई पैसा बोरो किया which you are going to repay over a longer period of time, generally more than 1 year, in that case it becomes a long term liability. The long term liabilities are generally considered as the term loans for the business, borrowings over a longer period of time. Term loan, आपने एक बार लोन बोरो किया, पैसा बोरो किया, and you are going to repay it in the installments, part by part. That is why it is called as a term loan. Now term loans can be repaid in installments including interest. Term loans can be repaid in installments
along with interest. मतलब क्या? अगर सपोज मैंने 1 करोड़ रुपए का बोरोइंग किया, right? And if it is said that on a monthly basis, monthly payment will be 1 lakh rupees including interest, this becomes an EMI, equated monthly installment, that is including interest. Whereas if it is said it will be repaid as 1 lakh per month plus interest. What do you mean by plus interest? जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, that will be paid in addition to this 1 lakh rupees. जब आप EMI बेसिस पे लेते हो तो आपके 1 लाख रुपए में इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूड हो जाता है. बट व्हेन यू आर टेकिंग लाइक दिस, इन दैट केस उस दिन तक जितना इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड है वो प्लस आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1 लाख रुपए, इस तरह से आप उसको रीपे करने वाले हो. वॉट एवर इज द वे ऑफ रीपेमेंट, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर अस. You have borrowed it and you are going to repay it over a longer period of time. That's why we are considering that as term loan. Now these loans which are taken from the bank can be of the multiple types. Some are called as mortgaged loans. Some are called as loan against hypothecation. In some cases it is called as लोन अगेंस्ट प्लेज. आप तीनों के तीनों लोन ही है आपके लिए, बट तीनों के तरीके अलग हैं. मॉर्गेज, आई होप लगभग सबने सुना होगा. मॉर्गेज्ड लोन बेसिकली अप्लाइज टू द फिक्स्ड असेट्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. Immovables. Whenever there is an asset which cannot be moved from one place to another, that is called as immovable asset. तो अगर आप लैंड के अगेंस्ट, बिल्डिंग के अगेंस्ट, दैट इज योर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जो होती है उसके अगेंस्ट अगर आप बोरोइंग करते हो, in that case those borrowings are generally the borrowings against the mortgage. What do I mean by mortgage? M-O-R-T-G-A-G-E, mortgage. What do I mean by that? मेरी ये प्रॉपर्टी है, मुझे ये प्रॉपर्टी मेरे बिजनेस के लिए यूज करनी है, पर मुझे मेरा बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए. तो मैं क्या करता हूं, मैं बैंक के पास जाता हूं. That I am feeling alone, please give me the loan. Bank says, okay, no problem. Do you have any asset? I say, yes, I am having a property, but I want to carry the business in that property. Bank says, no problem. You keep the property with yourselves. Whatever is the market value of that property, we consider that, we will value that. और उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि आपको मैक्सिमम कितने का लोन दे सकते हैं. They decide, चलो 1 करोड़ का लोन दे सकते हैं. They give me the loan of 1 crore rupees. Now against that 1 crore rupees, my property is not transferred to them, but I have surrendered my right of selling the property. मैं जब तक के वो लोन रीपे नहीं कर दूंगा तब तक मुझे इस प्रॉपर्टी को बेचने का हक नहीं रहेगा. If at all I want to sell the property, for that purpose I will be required to take the prior permission from the bank. और बैंक की परमिशन के हिसाब से मैं उस प्रॉपर्टी को बेच पाऊंगा, अदरवाइज नहीं. तो यहां क्या हुआ? The possession of my property remained with myself. I have not sold or transferred that property to the bank, but I have surrendered my rights of selling the property, transferring the property to anyone else. To whom? To the bank. With the permission of the bank
or on the repayment of my loan only I will be able to sell my property, and that is why it is called as the mortgage. These are for the longer period of time, generally in a period of 10 years, 15 years, 20 years, depending upon the kind of property, depending upon the kind of business, depending upon the kind of bank. कोई बैंक्स 25 साल तक के लिए भी बोरिंग दे देती है. क्यों? तो आपका रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 50 साल तक के वैसे ही रहेगा. और कोई बैंक्स 10 साल के लिए लोन देती है. क्यों? तो कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भरोसा नहीं करते बहुत ज्यादा दिन, एंड दैट्स व्हाई दे गिव द लोन ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, depending from bank to bank, financial institution to financial institution, property to property. आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, बंदा कैसा है. राइट. सेकेंड होता है हाइपोथिकेशन. दिस बेसिकली अप्लाइज टू सच असेट्स whose values keep on fluctuating. Like if you take the example of inventories, stock of goods. हमारे जैसे बंदे को हाइपोथिकेशन लोन्स नहीं मिलते हैं बिकॉज वी आर इनटू सर्विस. वी डू नॉट हैव एन एसेट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और डेटर्स. नॉर्मली व्हेन द लोन इज गिवन अगेंस्ट द स्टॉक एंड डेटर्स, इट इज कॉल्ड एज हाइपोथिकेशन लोन. व्हाई हाइपोथिकेशन? प्रॉपर्टी को बेचने के लिए हमें बैंक से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है. गुड्स हमारे ही पास होते हैं, गुड्स का ओनरशिप हमारे ही पास होता है, गुड्स का पोजेशन भी हमारे पास होता है, और हम लोग उसे सेल भी कर सकते हैं. करेक्ट? दैट्स पॉइंट नंबर 1. फर्क क्या? अगर मैं बैंक को कंटिन्यूअस बेसिस पे लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहा हूं, द बैंक हैज द राइट टू possess all my goods and acquire all my debtors. अगर सपोज मैंने बैंक से एक 50 लाख रुपए का कैश क्रेडिट लोन लिया. कैश क्रेडिट इज अ काइंड ऑफ ओवरड्राफ्ट. उस ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट मैंने बैंक से कहा, भाई मेरे पास कोई और असेट नहीं है पर मेरे स्टॉक डेटर्स है, वो तुम रख लो. बालकनी, बालकनी इधर, ब्लू टी शर्ट, वो कनपुर्जा निकाल, इधर बैठ के गाने सुन रहे तू, दिमाग खराब है तुम लोग का. क्या जरूरत होती है तुमको दिन भर कानपुर्जा कान में रखने की? पॉड्स, बर्ड्स, हेडफोन, व्हाट्सएवर नेम यू कॉल इट विद दैट. नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? कौशिक. क्या सुन रहा था? कुछ नहीं. इसके लिए पैसा भरा इधर. वाले यार, मतलब सीरियसली, आर यू सीरियसली इंटेंडिंग टू डू सीए कोर्स? कौशिक, बकवास है यार. सॉरी क्या होता है? इतनी कैपेसिटीज कैसे आ गई तुमको? आई डोंट नो. आर यू अटेंडिंग इट ऑनलाइन कि इधर कुछ भी चलने दो, मैं तो मेरे गाने ही सुनूंगा? एंड मैं लॉजिकली बोलता हूं, एक कॉन्फिडेंस के साथ, जो कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं तुमको ये पता नहीं थी. आज तक बता दे मुझे किसी ने तुमको बताया होगा कि मॉर्गेज क्या होता है, प्लेज क्या होता है, या फिर हाइपोथिकेशन क्या होता है? जाने तो मैं डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट पे आ जाता हूं, विषय खत्म. लेट मी डिस्कस व्हाट यू वांट. So in case of the assets whose values keep on fluctuating, whose values keep on changing from point to point. Values keep on changing मतलब क्या? मैं गुड्स परचेज भी करते रहूंगा, सेल भी करते रहूंगा, तो मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है उसका वैल्यू बढ़ते कम होते रहेगा या नहीं? उसी तरह से मैं अगर गुड्स क्रेडिट पे बेच रहा हूं, तो मेरे कस्टमर्स जिनको मैंने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं,
उनसे कभी पैसा वसूल हो जाएगा, कभी मेरा क्रेडिट बढ़ जाएगा. सो देयर वैल्यूज विल ऑल्सो कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग और नॉट. I give the right of liquidating this to the bank. When I am not repaying that loan. So my stock, my debtor will remain with me till what point in time? Till the point I am servicing my loan. I am repaying my bank loan. I am giving the interest on that. अगर मैं इंटरेस्ट और लोन का रीपेमेंट रेगुलरली कर रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ आई डू नॉट रीपे द लोन, इफ आई डू नॉट और कीप द लोन इन ऑर्डर, मैं उस पर इंटरेस्ट भी पे नहीं कर रहा हूं, देन इन दैट केस बाय द चार्ज ऑफ हाइपोथिकेशन all my properties in the form of stock and debtor can be taken over by the bank, and bank will liquidate it in the form of auction to collect their money. So that is what is the case of hypothecation. I hope you are understanding the difference. Mortgage के केस में आपको right to transfer नहीं होता है, but right to possess होता है. In the case of hypothecation आपको right to transfer भी होता है. Alright? And especially mortgage applies to immovables. Hypothecation applies to movables and the products whose values keep on fluctuating. Is that point right? And the third case, हाँ जी, उनको जो एक्सेस पैसा मिलेगा ऑन लिक्विडेटिंग, इफ एट ऑल वी आर नॉट रीपेइंग, सपोज 2 करोड़ का प्रॉपर्टी, उनका आउटस्टैंडिंग सिर्फ 60 लाख रुपए का है, हम लोग रीपे नहीं कर रहे थे तो उन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली हमसे, और प्रॉपर्टी एक्वायर करके ऑक्शन करवा दी, ऑक्शन करवा के उन्होंने वो 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 1 करोड़ 50 लाख में बेच दी. राइट? इन दैट केस द एक्सेस ऑफ 90 लाख रुपीज विच इज देयर विद देम, दे विल रीपे टू अस. दे कैन नॉट कीप इट विद देमसेल्व्स. इज इट पॉइंट राइट? हाँ. तो द थर्ड केस दैट इज प्लेज. दिस इज नॉट दैट भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे, फिर क्या आगे बांग्लादेश और पाकिस्तान जाएंगे हम लोग, सभी भारतीय भाई बहन है. हाँ, घर चलाना है यार, आगे बढ़ानी है, वंश को आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या पाकिस्तान से लेके आएंगे हम लोग. तो प्लेज is especially applicable to such assets whose ownership and whose right to transfer and possession is transferred to the financial institution or banks. स्टॉक के केस में ओनरशिप आपके पास थी, पोजीशन आपके पास था, बट अगर आप कोई गोल्ड लोन ले रहे हो, द गोल्ड गेट्स ट्रांसफर्ड टू द बैंक. Bank gives you the money against the value of that gold. In this case, it is called as a pledge. The possession of the property gets transferred from the owner to the lender in case of a pledge. Point number 1. Point number 2, right to transfer does not get transferred immediately. Right to transfer will be remaining with the owner. If owner does not pay the money, owner does not repay the loan, in that case the bank gets the charge over that particular property and they can sell off that particular thing to liquidate their money. Is the point right? So there is a difference between mortgage, hypothecation and pledge. Mortgage और hypothecation में possession हमारे ही पास होता है, but pledge में possession transfer होता है. मॉर्गेज के केस में हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. मॉर्गेज इज फॉर इमूवेबल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. द हाइपोथिकेशन इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर द मूवेबल्स प्रोडक्ट्स हैविंग द आइटम्स हैविंग फ्लक्चुएशंस इन इट्स वैल्यूज. Whereas pledge applies to the movables in which the possession gets transferred to the banks or financial institution. आप किसी भी तरह का लोन लो,
Those all are borrowings only or not? Those all are borrowings from outsiders only, and that's why those are categorized into either the long-term liabilities or into the short-term liabilities. अगर आपने overdraft लिया तो it will be categorized as short-term because you have to repay it in the short period of time, generally less than 1 year. Whereas अगर आपने term loan के तौर पे लिया तो it becomes long term because you are going to repay it over a longer period of time, generally more than 1 year. Am I going right for everyone now? Now, short term liabilities are further categorized into the current liabilities and the provisions. What is a current liability? The liability arising in the business, the liability of a business which is expected to be repaid within a short period of time, generally less than 1 year, to include will be creditors. अगर आपने goods credit पे खरीदे, आपके supplier को आपका payment करना बाकी है, in that case such amount which is still payable to the creditors will be considered as your current liability. क्योंकि कोई क्रेडिटर आपको ऐसा तो नहीं कहेगा, कोई नहीं भाई जब तेरा मन करे तब पैसा दे दियो. The creditor will normally be giving you the credit period of maybe 2 months, 3 months, 6 months. You cannot have the credit period beyond a particular point, and it will generally be less than 1 year only. इसीलिए क्रेडिटर्स या सप्लायर्स को जो पैसा देना बाकी है, that is considered as a current liability. Whereas the amount payable to the banks against the overdraft, आपने बैंक में डिपॉजिट से ज्यादा विड्रॉ किए हैं, ऑफ कोर्स विद द परमिशन ऑफ द बैंक. अदरवाइज अगर आप चले गए एटीएम पे, चलो आज पैसा ज्यादा विड्रॉ करके आएंगे, अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़ा है और अपन ने एटीएम पे स्वाइप किया एंड अपन 4 लाख रुपए विड्रॉ करके आ गए. एक तो एटीएम से 4 लाख रुपए विड्रॉ नहीं हो सकते, हाँ लिमिट होता है. चलो अपने अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े, अपन 1 लाख रुपए विड्रॉ करके आ गए, हो सकता है. अगर तुमको परमिशन होगी तो. परमिशन कौन देगा? बैंक. बैंक कब परमिशन देगा? जब हम लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे. सो इट्स अ काइंड ऑफ लोन. एंड बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ये जनरली आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए मैक्सिमम दिया जाता है. उसके बियॉन्ड यू डू नॉट गेट द ओवरड्राफ्ट फ्रॉम द बैंक. इट कैन बी अ कैश क्रेडिट ऑल्सो. So whatever that is, the maximum duration for which an overdraft is given is 1 year, and that's why it is considered as a current liability. उसी तरह 12th standard में आपके पास टॉपिक था bills of exchange. When you have accepted a document in favor of someone against the consideration that you have received, that particular thing is called as bills payable. So when there is an acceptance, when you have accepted a bill, the amount is payable within the period of 2 months, 3 months, because you start with that format. rectangle बनाते थे ना, याद है? बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट 5 मार्क के लिए पूछते थे. पूछा था ना इस बार भी? नहीं? कितने फॉर्मेट का प्रैक्टिस किया था सर, पूछे ही नहीं. तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल, उसके अंदर एक स्क्वायर मारते हैं, स्टैंप है ना, अमाउंट, an amount of rupees so and so, no, 2 months after this date. ये देखो तोते बैठे हमारे पास, सच में इतना खतरनाक रट्टा हुआ है. एनीवेज वो स्टैंप लिखते थे कुछ तो, नहीं कौन सा स्टैंप होता था रे वो? We used to write every time stamp, है ना? कौन सा स्टैंप होता था? What that stamp was? सर कोई रबर स्टैंप होगा. स्टैंप लिखते थे ना तुम लोग?
यस कौशिक, कौन सा स्टैंप होता था? तूने बनाया था फॉर्मेट कि वहां पे भी हेडफोन दे? कौशिक कहां से प्रॉपर तू? पुणे से ही है, लग गई मेरे को। गांव वाले बेचारे अभी तक डरे हुए हैं, जो बाहर से है ना वो अब तक के सेटल ही हो रहे हैं। 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए ना क्लास को, 15 दिन हो गए आज, 2 हफ्ते आज, मतलब आज मंडे है वापस से, 3rd 17th। बाप रे, टाइम रन्स वेरी फास्ट, यू नो। कैसे 6 महीने निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, है ना। सर आप पढ़ाओ ना सर, 15 दिन हो गए, कुछ लग ही नहीं रहा कि हमने पढ़ा है। सीरियसली, यू हैव ICI module chapter 1 unit 3 accounting glossary. Today we are finishing that chapter accounting glossary. करीब करीब 17 पन्ने का चैप्टर है, राइट। जितना भी अब तक के डिस्कस किया है ना वो सारा उसमें इंक्लूडेड है। चैप्टर 1 यूनिट 3 अकाउंटिंग ग्लॉसरी। सर ऐसा कब बताओगे आप हमको? इतना पढ़ लिया, हमको समझ ही नहीं आया कि हम पढ़ रहे थे। हमें तो लग रहा था अब तक के सिर्फ मतलब वो ट्रायल ही चल रहा है। वो होता है ना, मतलब पिक्चर के पहले ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर पे कितने ट्रेलर दिखाओगे बे, बस करो, पिक्चर भी दिखाओ, उसके पैसे दिए। एनीवेज, वो होता है ना, स्पेशली पुणे में ना, आप पीवीआर चले जाओ, आइनॉक्स चले जाओ, पिक्चर से ज्यादा तो एडवर्टीजमेंट्स और ट्रेलर चल रहे होते हैं। ये इनका ब्रेक ही डायरेक्ट 20 मिनट का होता है। ये इस पीरियड में एंजॉय करो आप एडवर्टीजमेंट्स। बंदा कहता है मैं कुछ और एंजॉय करने आया था, तुमने लाइट चालू कर दी। सो एनीवेज, current liabilities, the amounts which are repayable in a short period of time, generally less than 1 year, we consider that as current liabilities. So bills payable, if you have accepted a bill in favor of someone and against that the amount is payable, that's why it is called as bill payable. Even bill payable is considered as a current liability. वो जो स्टैंप होता है ना, चौकोन स्क्वायर बनाते हैं रेक्टेंगल के अंदर, that is basically a court fee stamp, because you consider bill of exchange as a legal document, and if you want to legalize any document you need to pay the stamp duty on that, and that stamp duty is paid in the form of court fee stamp, which is affixed, which is sticked on that particular bill of exchange. या तो आप स्टैम्प पेपर पे लिख लो, महंगा पड़ता है, इसलिए कोर्ट से आप ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से उसकी फी ले सकते हो और उसकी टिकट्स ले सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ पोस्टल स्टैम्प ओनली। जैसे हमारे पोस्ट के स्टैम्प्स होते हैं ना, वो भी नहीं देखे होंगे। तुम्हारा कहां से संबंध है पोस्ट? सर हमारा तो सिर्फ इंस्टा पोस्ट, फेसबुक पोस्ट नहीं, फेसबुक है, फेसबुक। सर वी आर स्नैपर्स, यू नो। हाँ सर, क्या क्या लेवल की स्ट्रीक मेंटेन करते हैं आपको पता भी है? 200 की स्ट्रीक, 500 की स्ट्रीक। लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तेरा हाईएस्ट स्ट्रीक कितना है, तेरा स्नैप स्कोर कितना है। बकवास इंसान। सीए का स्कोर कंपेयर करो तब पता चलेगा। सर रहने दो सर, कैंसिल स्नैपचैट। सो डिस्कशन ही नहीं करना है। आपके साथ डिस्कशन करने जाओ आप सारे मूड खराब कर देते हो। इतना माहौल बनने लगता है कि आप स्नैपचैट के बारे में बंदा डिस्कस कर रहा है, चलो अपने बारे में बात कर रहा है, और फिर अचानक सीए कोर्स कुछ भी। सो बेसिकली दैट स्टैम्प विच यू आर अफिक्सिंग इज बेसिकली टू लीगलाइज दैट डॉक्यूमेंट, एंड वो जो उसकी वैल्यू होती है स्टैम्प की, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ योर बिल ऑफ एक्सचेंज। जो आपके बिल की वैल्यू होगी उसके रीजनेबल अमाउंट से, उसके कमेंसुरेट अमाउंट से तय किया जाता है कि आपको कितने का स्टैंप लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, खैर ये जानकारी थी। द लास्ट वन दैट इज प्रोविजन। यस, व्हाट इज प्रोविजन? होता है ना कुछ तो। व्हाट डू मीन बाय इट? अमाउंट केप्ट असाइड इन केस यू इनकर अ लॉस। तो रिजर्व क्या होते हैं? ये तो टाइप हो गया ना मैडम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आई वांट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन?
अमाउंट केप्ट असाइड टू मीट द नोन लाइबिलिटीज, मतलब तुमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किया तो कुछ ना कुछ खुराफाती निकलेंगे। फिक्स है कि विजय मल्ल्या है ही अपने पास? नहीं सर, आजकल नीरव मोदी चल रहा है। हॉट पीपल, यू ऑल्सो कैन गिव द आंसर। सारे हॉट बैठे ना, थैंक गॉड ये लोग बेंच पे खड़े रह के हाय गर्मी नहीं कर रहे। यस, टेल मी व्हाट इज अ प्रोविजन? Provision and reserves are different things. It is not same. हाँ, provision for depreciation is not a liability, man. नहीं, provision for depreciation is a different concept altogether. It's a loss against the asset that you are owning, and it is the accumulated depreciation over the asset. छोड़, इनको नहीं मालूम है, चकरा जाएंगे बेचारे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है? हमने तो सुना ही नहीं। तो ये लोग डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस से बाहर नहीं निकल पाए अब तक के। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कहां दिखा रहा है यार? रुकना, थोड़ा संयम। हाँ जी, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, एज आई सेड, आर डिफरेंट। प्रोविजंस आर बेसिकली मेड फॉर द एंटीसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस। When you are expecting, होगा जरूरी नहीं है, but you are expecting that a business can incur a loss. आपको subsequent year में, subsequent period में कुछ loss हो सकता है, expense हो सकता है, करना पड़ेगा. In that case, you can keep certain money aside for that anticipated loss or expense. In fact, there is a concept. अब तक के दो कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया, कौन सी? गोइंग कंसर्न और बिजनेस एंटिटी. There is another concept called as conservatism concept, conservatism principle. What is this conservatism principle? It says if you are anticipating an expense, if you are anticipating, expecting a loss to occur, you should recognize, you should record that immediately. पर अगर आपको लगता है कि बिजनेस पे कोई इनकम हो सकती है, एंटीसिपेटेड हुई नहीं है, हो सकती है, तो उसको इग्नोर कर दो, उसको रिकॉर्ड नहीं करने का. एंटीसिपेटेड इनकम्स इग्नोर, एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड, अभी के अभी. क्यों? जस्ट इमेजिन, अभी अभी तुम्हारी 12th की एग्जाम खत्म हुई है ना, रिसेंटली, कुछ 20 दिन पहले, नहीं 1 महीना हो गया. अब 15 मार्च को लास्ट पेपर था ना, 13 मार्च, सॉरी 13 मार्च, आज 17 है, मतलब 1 महीना 4 दिन हो गया सर. उसके बाद आईटी का पेपर था सर, ये 31 मार्च वाले. हाँ, फाइनेंशियल ईयर के साथ में एग्जाम खत्म करके आए. हाँ, तो कितने लोग हैं सीबीएसई वाले? अभी सीबीएसई आईसीएसई एक बार वापस देखने दो जरा मेरे को. हाँ ठीक है, 3 5 7 11 14, ठीक है. हाँ, अच्छा, अदर बोर्ड्स वाले कितने हैं यहाँ पे? अदर बोर्ड, अदर देन महाराष्ट्र, जो अदर देन महाराष्ट्र वाले भी कहाँ से हो भाई साहब? कर्नाटका, ओह, राजस्थान, कर्नाटका. हाँ, तेरा गोवा है, तेरा मालूम है. हाँ, कर्नाटका, कर्नाटका, सारे कर्नाटका. वहां सीए कोई नहीं पढ़ाता है. It is been after maybe 3 or 4 years that we have got so much of Karnataka. Hubli, Belgaum, Bijapur, that kind of places, na? बराबर ना? Belgaum, Hubli, Bijapur, Raichur, and और कौन सा प्लेस से आते हैं? बीदर. ये प्लेसेस से नॉर्मली लोग आते हैं, उनको पता है एकत्वम है. अभी मतलब पिछले 3-4 साल से एकदम बंद हो गए थे, अब अचानक वापस उनको पता चल गया कि यहाँ कोई नहीं पढ़ा रहा है, वापस चलना पड़ता पूना. कि तू पूना घूमने के लिए आया था?
बेटा तेरी मुस्कान तो कुछ और ही बता रही है। हाँ ना, बंदा मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, पर सर रीजन कुछ भी हो सर, पूना तो पहुंच गए, यही चाहते थे हम। वेल, राजस्थान से डायरेक्ट, कमाल है यार। हम बंदा बोलते हैं सर वहां यहां से बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उससे बचने के लिए यहां पे आया हूं। राजस्थान इज एक्सट्रीम। वहां पे गर्मी, ठंड, बारिश, तीनों चीजें एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं। ठंड में चले जाओ डायरेक्ट 2 डिग्री, हाँ, और अगर बारिश में चले जाओ तो मतलब बंदा, सामने वाला बंदा नहीं दिखे, इतनी बारिश आती है जोर से, जब वो पीक रहता है बारिश का। और गर्मी तो मतलब तुम बाहर डोसे बनाओ, हाँ, बस डायरेक्ट अंडा फोड़ो, वो गाड़ी पे डालने का, उसके ऊपर ही नमक मिर्ची सब, कांदा, उधर ही ऑमलेट डायरेक्ट। एनीवेज, प्रोविजंस। तो अभी जैसे आपने 12th खत्म की ना, ये जो रिसेंट वाली, जैसे आपका वो अकाउंट इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म होता है ना, घर वाले खड़े होते हैं बाहर, कैसा था? अब मेरे जैसा बंदा हो ना, खैर मेरे घर वालों ने मेरे को कभी पूछा भी नहीं कि पेपर कैसे थे, क्या थे, तू कौन सी एग्जाम दे रहा है, तू तेरा जान, दैट काइंड। सीए कोर्स में आने के बाद में थोड़े से इंटरेस्टेड हो गए थे, बाकी अदरवाइज 12th तक के तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, वो सीए बनने के बाद में भी नहीं थी। खैर, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, पता है, घर का बंदा है ना, ठीक है। तो एग्जाम लिख के आते हैं हम लोग बाहर, ये 2 चेहरे हमेशा खड़े होते हैं या घर पे होते हैं, कैसा था? तो मेरे जैसा बंदा जवाब दे, नहीं जैसा था वैसा गया। कैसा लिखा? पेन से। कैसा गया? गट्ठे में। तो उसके बाद जब तक 2 लाफे ना पड़े ना, तब तक पता ही नहीं बंदा कि कैसा था पेपर। तो आप लोग थोड़े से इज्जत वाले लग रहे हो मेरे को। पहली बात में कैसा था? एकदम कम से कम 98। वो 2 भी सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव गलत हुए मेरे, अदरवाइज पेपर कड़क था एकदम, मक्खन, या दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस। और कोई बंदा होता है ना, कैसा था? ठीक ही था, हो जाएंगे पास, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान लो 2 महीने बाद रिजल्ट आया, मान लो क्या आएगा, तो रिजल्ट आया, रिजल्ट में द पर्सन हु सेड एकदम मक्खन 98 गेट्स 90 मार्क्स। 98 की जगह बंदे को कितना मिला? 90। बहुत बोल रहे थे 98 कम से कम, देख सिर्फ 90 मार्क्स आए हैं, सिर्फ 90 मार्क्स। बंदे की वो सारी जो एक्सपेक्टेशन, जो वो माहौल बनाया था ना, सारा खत्म। और वही जिस बंदे में ठीक है पास तो हो ही जाएंगे, दैट पर्सन गेट्स 80 मार्क्स। क्यों? तू तो छुपा रिस्तम निकला, पास हो 80 मार्क्स मिले तेरे को। See the expressions, why the change? The first person was anticipating an income, recognized it, और बाद में जब नहीं हुई तो पछता रहा है। And second person is recognizing an anticipated loss, कल को कुछ गड़बड़ ना हो, मैंने बहुत अच्छा लिखा है, सामने वाला भी तो अच्छा होना चाहिए ना, और कल को अगर गड़बड़ कोई मार्क्स कम आ गए तो जाने तो बताओ ही मत ना। बीइंग कंजर्वेटिव इज ऑलवेज बेटर, राइट? आज ही घर जाके सरेंडर कर दो, मैंने जो कुछ भी कहा था सब गलत था, कल मेरे को सपने में मेरा पेपर आया था और मुझे याद आ रहा है कि मैंने 3 क्वेश्चंस रॉन्ग किए, शायद मेरे को कम मार्क्स मिलेंगे, जो भी है समझ लेना। घर वाले एकदम प्रोटेक्शन में, कोई नहीं बेटा तू चिंता मत कर, तू सीए पे फोकस कर, वो देख लेंगे 12th का रिजल्ट जब आएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग कंजर्वेटिव, यू नो, दैट यू गेट सपोर्ट इन सिंपैथी। वेयरएज अगर तुम एंटिसिपेटेड इनकम के नाद में लग जाए ना, तो बाद में बेटा जो हाल होने ना तुम्हारे, और सपोज वहां पे 98 की जगह 90, और उस दिन रिजल्ट वाले दिन सोच ले सीए करना है नहीं करना है, क्या कर रहे हैं यार, 90 तो आया अपने ही है। एनी विच वेज, सो द पॉइंट इज व्हाट, दैट व्हेन यू आर एंटिसिपेटिंग अ लॉस, अगर आपको लगता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस ने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया पर वो प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं पता नहीं, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने कुछ पैसा अलग से रख दिया, एंटिसिपेटिंग अ लॉस। In that case, that amount will be considered as a provision.
सर फिर प्रोविजन और रिजर्व में फर्क क्या रह गया? रिजर्व में भी तो पैसा अलग रखते हैं. द रिजर्व्स आर द प्रॉफिट्स केप्ट असाइड. मतलब ये कि अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो आप रिजर्व बनाओगे. इफ योर बिजनेस डू नॉट हैव द प्रॉफिट्स, you cannot create the reserves, and that's why reserves are called as the appropriation of profits. Appropriation का मतलब क्या? आप प्रॉफिट को डिवाइड करके जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो, that process is called as appropriation. तो अगर आपको प्रॉफिट्स को डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए नहीं. तो रिजर्व सिर्फ तभी बना पाओगे जब आपके पास प्रॉफिट्स होंगे. बट प्रोविजंस हैव टू बी क्रिएटेड इवन इन द ईयर ऑफ लॉस. ऐसा तो नहीं है कि आपके बिजनेस को ऑलरेडी लॉस चल रहा है, आपने आपके कस्टमर को कहा नहीं भाई फिर देख डिफॉल्ट मत करना प्लीज, पहले ही लॉस चल रहा है, मैं तेरे लिए प्रोविजन भी नहीं बना के रखा है. यू हैव टू क्रिएट द प्रोविजन इवन इन द ईयर ऑफ लॉसेस, एंड दैट्स व्हाई द प्रोविजंस आर कॉल्ड एज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या? It will be charged, it will be debited to the profit and loss account even if your business is having the losses. But reserves are called as appropriation. अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो ही आप रिजर्व बना पाओगे, अदरवाइज नहीं. इज द पॉइंट क्लियर? पक्का? एक काम करते हैं, रिजर्व प्रोविजन का डिस्टिंक्शन लिखते हैं. राइट डाउन. Two parts, reserves and provisions. Reserves and provisions. Write down. Another part of reserves, the profits of a business kept aside for a future use, are reserves. Provisions, write down. An amount kept aside against an anticipated expense or loss. Against an anticipated expense or loss is a provision. Reserves are the appropriation of profits. Reserves are the appropriation of profits. Provisions are charge against profits. Provisions are charge against profits. Reserves can be created only in the year of profits. Reserves can be created only in the year of profits. Provisions have to be created
have to be created even in the year of losses. Even in the year of losses. Next. Reserves. Examples: building reserve, general reserve, provisions. Example: provision for provision for outstanding expenses or provision for doubtful debts, or provision for doubtful debts. Is the point right? So that's it for the day. Tomorrow we are going to start with the types of accounts. Thank you.